Good morning and welcome to Dr. Sudhir's classes. We are starting Haryana Civil Services Foundation batch, and in this batch we will be covering all the static syllabus as well as current affairs. So today in the line of that we are starting with geography. See, geography is very important for your general studies paper. It is important from the point of view that in geography you can score very good marks, right? And the importance of geography is equally good in prelims as well as in mains. So first question arise in your mind is that what you should study in geography. Whether you study only physical geography, or you study only world geography, or you study only Indian geography, or you study geography of Haryana. See, we have to study everything in a structured manner. You cannot leave out world geography or physical geography or Indian geography or geography of Haryana. Everything is equally important. So we will devote sufficient time to each of these sections in our study. ठीक है? So सबसे पहले हम शुरू करते हैं what geography is and what we will study in our classroom program. So geography is important for 10 to 12 questions as well. Because of activity in geography, the answers of the geography, and I will be taking your geography class. I am Dr. Sudhir Kumar. Okay. Plus Earth, graphos, study, description, so in simple words, geography क्या है? It is just the description of Earth. It is the description of Earth. बट आप अगर सिर्फ इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं तो ये बहुत ही शैलो डिस्क्रिप्शन है. ये एक डीपर मीनिंग नहीं देता है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट को. तो क्या समझेंगे हम ज्योग्राफी को? ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी is the study of earth. Yes, it is true that it is the study of earth, but why do you study this? Because it is our home, because this earth is the home in geography is because it is our home. We draw all our resources from earth, most of it. That is why we study. Geography is important for our environment. Geography determines our environment. The kind of natural resources that we have at a particular place, it is determined by our geography. What kind of economic activity will take place
what kind of infrastructure can be developed at a place, in a region, what kind of industry can be located in a region, isn't it? What kind of food habits, dressing habits, it is determined by the location or geography of that region. So geography is very important from social, economic, cultural and political point of view. You might have heard of oil politics, जो कि मिडल ईस्ट या फिर जो आपके अरब स्टेट्स हैं वहाँ पे चलती है। तो अरब स्टेट्स में ऑयल पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं आप? वो रीजन है, उस लोकेशन के अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट है आपका ज्योग्राफी का एक एंगल, ठीक है। सो ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी के अगर हम देखें, ज्योग्राफी के दो बड़े पार्ट हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को आप समझ सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा आ जाता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या समझते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखते हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्थ, जिस चीज को आप टच करके देख सकते हैं, जिस चीज जो फिजिकल फिनोमिना है उस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशियनोग्राफी, और चौथा आपका बायोजियोग्राफी। तो चार ये मेजर सब ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप कहाँ की पढ़ेंगे? अगर आपसे पूछा जाए हम क्या क्या पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, क्या हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, या इंडिया का स्पेसिफिकली अलग से देखेंगे, या हरियाणा का भी स्पेसिफिकली अलग से देखेंगे? सो हमारा जो है पूरी तैयारी के दौरान, जो जब तक हम ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म करते हैं तब वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम क्या जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ की शक्ल कैसी है उसके बारे में पढ़ना है। माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, तो ऊपर ऊपर क्या हो रहा है वो आप देखोगे। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट और वेदर, मॉनसून क्या होता है, बारिश क्यों होती है, क्लाउड्स क्या होते हैं, ड्यू क्या होता है, ये सब चीजें। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्यों होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपका क्लाइमेट। तो हरियाणा में स्पेसिफिकली दिल्ली के आसपास अभी जो पॉल्यूशन और जिसके कारण स्मोक का इशू आ रहा है, दैट विल बी कवर्ड इन आवर क्लाइमेटोलॉजी ऑल्सो। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी में आप ओशियंस बेसिकली 70% से ज़्यादा अर्थ पे पानी है, तो इस इशू को हम ओशियनोग्राफी में देखेंगे। क्या ओशियन करंट्स होते हैं, क्या ओशियनिक टाइड्स होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ओशियनिक मूवमेंट्स, what are the factors responsible for those movements, that we will see in oceanography। ठीक है, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रेस्पेक्ट में हम ओशियनोग्राफी को स्टडी करेंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है बायोजियोग्राफी। यहाँ पे जितने भी तरह तरह के बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, किस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, उनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, वो डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे।
वर्ल्ड में, इंडिया में एज वेल एज हरियाणा को भी हम बायोजियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड बायोजियोग्राफिकल जोन्स तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी, ठीक है, कहाँ पे कौन सी तरह की इंडस्ट्री भी लगाई जाएगी वो भी आप समझ सकते हैं, कहाँ पे कौन सी थ्रेट्स हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट विल बी फिजिकल ज्योग्राफी। सेकेंड मेजर पार्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। इस ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम इन्हीं तीनों एंगल्स पे देखेंगे। अब समझने की बात यह है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या चीज आती है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका आता है रिसोर्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे जमीन से, कैसे अर्थ से रिलेटेड है। आप जानते हैं किसी पे जगह पे तेल मिल रहा है, किसी जगह पे आयरन मिल रहा है, किसी जगह पे गोल्ड मिल रहा है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस डिटरमिन कर रही है। किसी जगह पे रेलवे ट्रैक बिछाना आसान है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन हिमालयाज, तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे डेवलप हो सकता है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स लोकेशन। किस तरह का अर्बनाइजेशन होता है और किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए वो कौन डिटरमिन कर रहा है, आपकी ज्योग्राफी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सरफेस दैट यू डील अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। सो इन दैट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, किस तरह के सेटलमेंट पैटर्न होना चाहिए, गांव में किस तरह के गांव, कई जगह पे जो है बहुत बड़े बड़े गांव हैं, जैसे कि हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है, अलुवियल रीजन जहाँ पे है, पूरा का पूरा जो गैंगेटिक रीजन है, यहाँ पे बहुत डेंस सेटलमेंट पाया जाता है, बहुत डेंस गांव है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश में या फिर जैसलमेर एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स बेस ऑफ दैट रीजन। कितने रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वहाँ पे, वो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमिन करता है। आप देखते हो कि गंगाटिक रीजन में है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है, तो एक खेत जो होता है, एक हेक्टेयर जो है, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को, बेसिकली एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है, एक साल के लिए, एक सीजन के लिए। इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बाकी जगह पे कम है प्रोडक्टिविटी, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपका अर्बनाइजेशन भी आ जाएगा कि अर्बनाइजेशन कैसा है, कैसा अर्बनाइजेशन होना चाहिए, तो आप रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो आफ्टर स्टडिंग ज्योग्राफी। ठीक है, रिसोर्स के ऊपर पॉलिटिक्स, किसी रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट है, किसी में कम डेवलपमेंट है, अब उसके कारण जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस डेवलप होते हैं दैट वी कंसिडर अंडर दिस ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ये सारी बातें हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं और दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एनरिचिंग फॉर यू पीपल। अगर आप थोड़ा ध्यान से रखेंगे तो आई विल टेल यू कौन से टॉपिक से क्या सवाल आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। बी केयरफुल टू लिसन वट एवर आई से इन दिस क्लास and I can guarantee you that you will gain a lot. After this class you will get some questions also that you can solve on your own and that will be very very beneficial for you. Okay, so let us start geography with the first topic that I was just telling you. This is geomorphology. Okay, so what is geomorphology? The term geomorphology is derived from geos plus morphos plus logos. Logos is study or systematic study. Morph means shape and geo means earth. So it is the study of earth's shape or earth's surface
various landforms present on earth, and what are the causes responsible for formation or changes in the earth's shape. अर्थ की शेप क्या है अर्थ के ऊपर? अर्थ एक तो गोल, एक जियोड है, पूरा स्फेरिकल नहीं है, ये जियोड शेप है। पहली बात तो आप समझ लीजिए अर्थ की शेप कैसी है। ये इक्वेटर पे, ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 90 डिग्री पोल्स पे है, तो अर्थ जो है जियोड शेप की है। मतलब क्या है इसका? ये थोड़ी फैली हुई है इक्वेटर पे, पोल्स, ये पोल्स पे चिपकी हुई है और यहां से फैली हुई है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, अर्थ इज जियोड इन शेप, दैट मीन्स ये इक्वेटर से फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका डायमीटर आप नापेंगे तो ये डायमीटर जो है इक्वेटोरियल डायमीटर इज मोर देन दिस पोलर डायमीटर। ठीक है, सो इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है ये ज्यादा है और ये कम है। ये बात आपको याद रखनी है, ये सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है। क्यों कम है? बिकॉज इट इज फ्लैटेंड ऑन द पोल्स। एक सवाल यहां से ये भी बनता है कि अगर ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होगी या इक्वेटर पे ज्यादा होगी, ये सवाल बनता है कई बारी, और ये हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ग्रेविटी तक पहुंचेंगे। पहले आप इतना ही समझिए कि अर्थ क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो जियोमॉर्फोलॉजी इस अर्थ की शेप की स्टडी है। ठीक है, अब अर्थ की शेप में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीजें आती हैं, वो आपको जाननी होंगी। दैट इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, और जो भी फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं जो इस शेप में बदलाव लाते हैं। अब वो कौन से फैक्टर है? कुछ फैक्टर जो अर्थ के ऊपर होते हैं और कुछ अर्थ के अंदर होते हैं। दो तरह की फोर्सेस जो हैं ऐसी हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं इस अर्थ की शेप को चेंज करने में, है ना। तो आपको लग रहा होगा क्या फोर्सेस हैं क्या नहीं है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अर्थ आई कहां से? डू वी नो फ्रॉम वेयर द अर्थ केम इनटू बीइंग? सो सबसे पहला सवाल आपको जानना ये चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी में, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कि अर्थ की शेप, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, या फिर जो गहरी खाइयां, वैलीज, ये कैसे बनी। उनसे पहले आप जानिए कि अर्थ ही कैसे बना। क्या हम जानते हैं कि अर्थ कहां से आई और क्यों आई? डू वी हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? सो एज ऑफ नाउ, whatever explanation we have, it is through various theories which were given by some scholars, some geographers. उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि शायद अर्थ ऐसे आई होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं origin and evolution of earth. ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ कब पैदा हुई और क्या शुरू में जब पैदा हुई थी और आज में कोई बदलाव हुआ है, ये चीज आपको समझना है। तो शुरुआत में जब कि अर्थ ओरिजिनेटेड अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये कुछ थ्योरीज के थ्रू और कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के थ्रू हमें पता लगा है कि अर्थ इस टाइम पे पैदा हुई थी, सबसे पहले बनी थी। लेकिन उस टाइम पे जो अर्थ थी और आज की डेट में जो अर्थ थी वो बहुत बदलाव हो चुका है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इवोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, ये अर्थ का बनना और इसके इवोल्यूशन को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, और सबसे पहली थ्योरी इसमें है नेबुलर हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज नेबुलर hypothesis. This hypothesis was given by he was a mathematician. Laplace was a mathematician. Later on
It was revised by Immanuel Kant. ओके, सो आपको अगर दोनों में से कोई दिया जाए, नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी, आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए, लाप्लास का भी और इमैनुअल कांत का भी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि पहले, अर्थ के बनने से पहले, देयर वाज ए रोटेटिंग गैसियस नेबुला। गैस का एक क्लाउड था, क्लाउड को नेबुला भी बोलते हैं, बहुत बड़ा गैस का क्लाउड था जिसमें गैस और डस्ट दोनों थी। ये जो क्लाउड था ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने लगा और धीरे धीरे रोटेट करते करते ये एक्रीट होने लगा, कंडेंस होने लगा। उस कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए जो कि प्लैनेट्स, और बीच वाला जो बड़ा सेंटर रह गया वो सन बन गया। सो ये थ्योरी क्या कहती है? बिकॉज ऑफ एक्रीशन एंड साइमल्टेनियस रोटेशन ऑफ दिस नेबुला, हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ और पूरा सोलर सिस्टम ऐसे इवोल्व हुआ है। अब इन्होंने जो बातें करी है थोड़ी हवा में रही। They did not provide any explanation to that. It was quite hypothetical to consider that ऐसा हुआ होगा. They tried to present some explanations but they were not satisfactory. Okay. तो इन्हीं के अपोजिशन में फिर एक और थ्योरी आती है। ये थ्योरी दी गई थी 1796 में। दूसरी थ्योरी आती है, उसका नाम है बाइनरी थ्योरी और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। सो दूसरी थ्योरी क्या है? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस क्या कहती है और ये किन्होंने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ये थ्योरी दी थी बेसिकली जीन और जेफरी ने, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रपोज करने वाले लोग थे चैम्बरलेन एंड मोल्टन, बट असली में इस थ्योरी के साथ जो जुड़े हुए हैं वो जीन एंड जेफरी। ओके, सो ये थ्योरी क्या कहती है, ये कैसे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है हमारे अर्थ के लिए, इसके इवोल्यूशन के लिए। तो ये थ्योरी हमें कहती है कि जैसे हमारा सन है वैसे सन का एक कॉम्प्लीमेंट्री और स्टार था, ठीक है, इसका एक कजन था। जब वो कजन अर्थ सन के पास आया तो सन में से एक नेबुला, एक तरह से एक्सटेंशन, एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन निकला। यू नो दैट सन इज मेड अप ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, सन इज मेड अप ऑफ गैसेस। सो जब ये स्टार अपनी ग्रेविटेशनल पुल के कारण सन में से एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन निकल गया और ये सिगार शेप्ड एक्सटेंशन सन से अलग हो गया और सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। और इसके एक्रीशन से, इसके एग्रीगेशन से, इसके कंडेंसेशन से हमारा पूरा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, ये थ्योरी कहती है, ठीक है। सो what is responsible for the formation of our solar system and various planets? This the complementary star to the sun. Okay, अब ये दोनों theories ही they did not provide any satisfactory answer for the evolution of the solar system. That is why there was a modern theory which was given by Edwin Hubble. This theory is known as Big Bang theory. So who proposed this theory? This theory was proposed by Edwin Hubble. What this theory says? Big Bang theory says that in the beginning all matter, सब कुछ जो भी था वो एक टीनी बॉल में था, एक टाइनी बॉल थी, बहुत छोटी बॉल थी।
right? Everything was in that teeny ball, that tiny ball. This ball, infinite temperature, and density, बहुत भारी भी था ये, but the volume कंचे जैसा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी था तो ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। और उस एक्सप्लोजन से, वो इतना वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ कि इमीडिएटली टेम्परेचर भी कम होता गया और एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। और यहीं से हमारा जो मैटर, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड फ्रॉम दिस टाइनी बॉल। द एनर्जी रिलीज्ड from this was very, very high. This energy was converted into matter. So matter was converted in the very first few minutes of this explosion. Temperature suddenly falls down. तो ये आपका एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है how the solar system or this universe came into existence. ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ये थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब आपको समझना होगा दूसरा, इसके साथ साथ, कि क्या ये थ्योरी सही है। ये थ्योरी यहीं पे रुकती भी नहीं है, ये कहती है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे आप बलून में हवा भरेंगे तो जैसे बलून में सब कुछ एक्सपेंड होता जा रहा है, उसी तरह से पूरा यूनिवर्स भी एक्सपेंड होता जा रहा है। सो ये थ्योरी जो बोल रही है, उसके लिए कुछ एविडेंसेस हमारे पास हैं मानने के लिए कि ऐसा सही में हुआ होगा। सो इसलिए हम मानते हैं कि इट प्रोवाइड्स सम सेटिस्फैक्टरी आंसर टू आवर क्वेश्चन, कहां से अर्थ आया, कहां से पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया का निर्माण हुआ। तो वो आंसर कैसे देता है। सबसे पहले आप देखिए, इतना वायलेंट एक्सप्लोजन था, बहुत ज्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन था। तो आज की डेट में भी हमारे जो कॉस्मिक रेडिएशंस प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ, हमारे यूनिवर्स में, वो कुछ ना कुछ एविडेंस देती हैं कि वो रेडिएशंस किसी वायलेंट फिनोमिना से एसोसिएटेड थे। नंबर वन एक्सप्लेनेशन टू दैट। दूसरा एक्सप्लेनेशन उसका क्या है, 2011 में नोबेल प्राइज मिला था टू डिस्कवर द एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स। उन्होंने डिस्कवर किया था दैट द गैलेक्सीज दैट आर फार अवे फ्रॉम अर्थ, कुछ ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत दूर है, वहां से जो लाइट अर्थ की तरफ आ रही है। सो जब वो पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हमने टेस्ट की तो ये पता चला कि उन्होंने रेड शिफ्ट शो किया। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, वो हमसे दूर जा रही है। तो पहले आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में बाद में समझाता हूं, पहले आप ये समझिए कि रेड शिफ्ट फिनोमिना जो 2011 में जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, वो चीज भी इस चीज के लिए एविडेंस देती है कि जो बिग बैंग है ऐसा कुछ हुआ होगा। So this theory is the most acceptable one as of now for us, ठीक है। तो ये चीज आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्स या फिर अर्थ या फिर सोलर सिस्टम का निर्माण वो एक इससे हुआ, इससे शुरू हुआ सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस कि सन क्या है, सन किस चीज से मिलके बना हुआ है, सोलर साइकिल क्या होता है, ठीक है, और सनस्पॉट क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सन। सन इज द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे, राइट। सो वी लिव इन अ गैलेक्सी विच इज नोन एज मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है
और सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, देयर वी हैव सन. सन is a star, and this star is made up of gases. And what are those gases? Prominent among them are hydrogen and helium. और सन के अंदर एक रिएक्शन चलता रहता है, to make helium, and in this process. Okay, so this is fusion reaction which goes around sun. So what is the cause of heat and brightness of sun? This fusion reaction in which hydrogen combines to form helium gas. So sun is a gas giant, right, which is very hot. Okay, ये चीज आपको समझ में आ गई? Now, अब सन के पार्ट क्या क्या है ये आप देखते हैं. तो सन के सबसे सेंटर में है सन का कोर, और कोर के ऊपर है फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर के ऊपर है जो एक बाहर जो दिखता है, दैट इज सोलर कोरोना. कोर, फोटोस्फीयर एंड इसके बाहर जो दिखता है आपको, दैट इज सोलर कोरोना. जो सोलर कोरोना है, यहीं से आपका कोविड-19 कोरोना वायरस नाम आया है. अब इस कोरोना में बहुत से प्रोमिनेंसेस निकल रहे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोलर मास इजेक्शंस, SMEs. ये सोलर मास इजेक्शंस सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी और सोलर साइकिल से एसोसिएटेड है. सो इन पार्ट्स को हम अब समझने की कोशिश करते हैं सोलर साइकिल से. सोलर साइकिल एक 22 इयर्स का साइकिल है, जिसमें सन के अंदर मैग्नेटिक एक्टिविटी बढ़ती है और घटती है. क्या होता है? मैग्नेटिक एक्टिविटी बढ़ती है और घटती भी है. वो 11 साल तक बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम सोलर मैक्सिमा, और वो 11 साल तक घटती है, उसको बोलते हैं हम सोलर मिनिमा. और इसी सोलर मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें कि जो मैग्नेटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स विद इन सन बढ़ते और घटते हैं, उस साइकिल को हम कई बार साइकिल भी बोल देते हैं. और सन स्पॉट साइकिल क्या हो गया फिर? जिसमें सन स्पॉट्स बढ़ते घटते हैं, नंबर ऑफ सन स्पॉट्स बढ़ते हैं increase, and after 11 years they decrease, right? So the question arises, what sunspot क्या है? So sunspots are cooler and darker regions on the sun surface which is associated with the magnetic storms. जो मैग्नेटिक एक्टिविटी अंदर हो रही है, उसके कारण सन के सरफेस पे कुछ डार्क और कूलर स्पेसेस बन जाते हैं, कुछ रीजन्स बन जाते हैं. उनको क्या बोलते हैं? सन स्पॉट. सन के ऊपर ये ऐसे डार्कर रीजन्स ऐसे पेयर में आते हैं, ये दिख जाते हैं, ये बोलते हैं हम सन स्पॉट्स. ठीक है? तो सन के पार्ट्स क्या क्या हैं? 3 पार्ट हैं, कोरोना, फोटोस्फीयर और कोर. ठीक है? सोलर साइकिल, सनस्पॉट साइकिल,
सन स्पॉट्स क्या है ये आपको पता लग गया। अब थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं, व्हाट इज प्लैनेट्स, राइट, एंड हाउ डू यू डिफाइन प्लैनेट, हाउ डू यू डिजिग्नेट अ प्लैनेट। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ देयर आर 8 प्लैनेट्स। Planets do not have their light source. They revolve around sun, that you know, right? They have a well-defined orbit around the sun, that you know. But let us take it a little, in depth. There is an international body which is known as International Astronomical Union. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये जो इंटरनेशनल बॉडी है ये डिजिग्नेट करती है किसी भी सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को, मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी आकाशीय पिंड, उसको क्या स्टेटस देना है, वेदर इट इज अ प्लैनेट और इट इज नॉट, इट इज डिटरमिन्ड बाय दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंटरनेशनल बॉडी। सो ये कुछ क्राइटेरिया फिक्स करती है जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये 8 प्लेनेट हैं और नोवा जो प्लेनेट था दैट प्लूटो, इट इज नॉट अ प्लेनेट। सो व्हाट आर दोज क्राइटेरियाज, यू कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्कर क्वेश्चन इन द मेंस और यू कैन बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। ठीक है, कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिजिग्नेटिंग एनी सेलेस्टियल बॉडी एज ए प्लेनेट और नॉट। सो द फर्स्ट थिंग इज that to determine the status of a celestial body is it should have a well defined orbit around sun. So first criteria is it should have well defined orbit around it should have sufficient mass to attain hydrostatic equilibrium. It should have sufficient mass so that it can attain a almost round shape. I'm not saying complete round shape, but almost round shape. Okay, so it should have sufficient mass to have almost a round shape. That is another criteria given by astronomical union. The third criteria, it should have cleared the neighborhood around its orbit. मतलब competition नहीं होना चाहिए इसके orbit पे. So it cleared the neighborhood, मतलब इसके नेबरहुड में कंपटीशन नहीं होना चाहिए ऑर्बिट में, नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। These are the 3 criteria on the basis of which International Astronomical Union give any celestial body a status of planet, कि वो planet है या नहीं है। और इसी बॉडी ने 2006 के अंदर प्लूटो को इस स्टेटस से डिप्राइव कर दिया, छीन लिया गया। ठीक है, एंड प्लूटो वाज डिक्लेयर्ड एज ए ड्वार्फ प्लेनेट। सो नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स। द 8 into 2 major, that is terrestrial planets and Jovian planets, gaseous planets. In between these there is asteroid belt. Third is Earth, fourth is Mars,
fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus, and then Neptune. These are the 8 planets. These are gaseous planets and these are rocky planets. That is why they are known as terrestrial planets. Why these planets are rocky? Because their gaseous envelope was stripped off because of violent sun rays. सन की वायलेंट रेज ने इनका जो एटमॉस्फेयर था उसको थिन कर दिया. इसके कारण ये रॉकी प्लैनेट्स हैं और आगे वाले यहां तक सन रेज का प्रभाव ज्यादा नहीं होता है. दैट इज व्हाई दीज आर गैसियस प्लैनेट्स. ठीक है, तो क्यों गैसियस हैं और क्यों टेरेस्ट्रियल है, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है. सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन and which is the farthest planet to the sun. So as of now we have this Neptune, right? Which planet, so how these planets revolve around sun? These planets revolve around sun in elliptical orbits. They do not revolve around sun in round or circular orbits, rather they revolve around sun in elliptical orbits. अब सिर्फ रिवॉल्यूशन ही काम नहीं है इनका, these planets rotate also. दो तरह के मोशन करते हैं planets, एक रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमते हैं और एक रिवॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है, ये सन के अराउंड घूमते हैं. ओके, सो कुछ फैक्ट्स हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दीज प्लैनेट्स. Okay, so the first fact is that how these planets revolve. Does all planets rotate in a similar fashion or there is some exceptions? Venus and Uranus, these two are exceptions to the general rule that all planets revolve in anti-clockwise direction except Venus and Uranus. Okay, Venus rotate in clockwise direction and this Uranus, it is up down in a clockwise direction, right? Second important point that you must know, this is nearest planet to the sun, so it must be hottest. Is it the hottest planet? Mercury is not the hottest planet. Then which planet is the hottest one? It is Venus. What is reason behind it? Why Venus is the hottest planet? Can you tell me why Venus is the hottest planet? Which gas is found in the atmosphere of Venus that make it hot? It is due to carbon dioxide. Yes, carbon dioxide can trap heat, right? So it is due to the greenhouse gases found on Venus, and that is why Venus is yellowish in color because of its heat. It is very hot. Another important fact for prelims, what is Goldilocks zone? Goldilocks zone is a region around a star जहां पे लिक्विड पानी की संभावना होती है. Where water is found in liquid form, that means life can sustain on that region. And in that region, if there is any planet around any star, that can have life. So Earth around Sun is found in this zone, Goldilocks zone, where there is possibility of liquid water or there is a possibility of life. अगर सिमिलर गोल्डीलॉक्स जोन में कोई भी प्लेनेट पाया जाता है किसी भी स्टार के अराउंड, दैट कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ. सो हो सकता है कि कहीं और पे एलियंस हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, और क्या फैक्ट है हमारे पास कि ये जो चारों प्लेनेट्स हैं
इसके बाद एक बेल्ट दिख रही है आपको, दिस बेल्ट इज नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट। सो व्हाट आर एस्टेरॉयड्स? ये स्मॉल रॉकी एस्टेरॉयड जो बॉडी हैं, रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये, जो कि सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, इस बेल्ट के अंदर, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, सो ये रॉकी बॉडीज हैं, इनमें कुछ बड़ी बॉडीज भी हैं, और एक तो इतना बड़ा है कि उसको स्टेटस दिया हुआ है ड्वार्फ प्लेनेट का। सो वो कौन सी बॉडी है? उसका नाम है सीरीज। सीरीज इज ए ड्वार्फ प्लेनेट जो कि यहां पाया जाता है, इसके अंदर इसका स्टेटस है ड्वार्फ प्लेनेट। देयर आर 5 ड्वार्फ प्लेनेट्स that are there in our solar system. The name of all those 5 you can write. One I just told you, Ceres. Another I told you, Pluto, which was deprived of its status. So the second one was Pluto. Third is Haumea. Fourth is Makemake. And fifth is Aries. These are the 5 dwarf planets in our solar system. And this dwarf planet is found in the asteroid belt. This is another fact that you must remember. ठीक है, सो ऐसा कौन सा dwarf planet है जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट का पार्ट है? सो दैट इज सीरीज। आगे के जो सारे प्लैनेट्स हैं चारों, जो कि इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के आगे लाई करते हैं, इन चारों के ऊपर रिंग्स पाई जाती हैं। दैट फैक्ट यू मस्ट नोट, कि अगर आपसे पूछा जाए क्या सिर्फ सैटर्न के रिंग्स हैं? नो, all these 4 planets have rings, but most beautiful, most prominent rings are there for only Saturn. ठीक है, Saturn की visible rings है, बाकी rings तो सभी में ही है। ओके, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेट है आपका जुपिटर। ठीक है, ये भी गैसियस जायंट है। अब आपके पास आ जाता है एक आध सवाल और। वो सवाल है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से प्लेनेट की है? सबसे ज्यादा डेंस प्लेनेट कौन सा है? यस, यू कैन गेस। नो, इट इज आफ्टर अर्थ। अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट। सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सी प्लेनेट की है? दैट इज ऑफ प्लेनेट अर्थ। सबसे कम डेंसिटी कौन से प्लेनेट की है? इट इज। सो ये सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी, किसकी सबसे कम डेंसिटी है। अब ये बताइए कि मर्क्यूरी का रोटेशन पीरियड, रिवोल्यूशन में कोई फर्क? वीनस के रोटेशन रिवोल्यूशन पीरियड में कोई फर्क? वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसका रिवोल्यूशन में कम टाइम लगता है और रोटेशन में ज्यादा टाइम लगता है। अर्थ के रिवोल्यूशन में कितना दिन लगते हैं? 365 डेज हैं, और इसके रोटेशन में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 24 घंटा। बट इसके रोटेशन में 242 से 243 दिन लगते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर कॉमेट्स। कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर लेते हैं। कॉमेट क्या होता है? टेल होती है जिसकी, और ये टेल किसकी बनी होती है? आइस की, गैसेस की। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है जो कि आकाश में घूमती है, ये काफी तेज चलती है जब तक ये सन के चारों तरफ ना आ जाए। तो सन के पास जब ये आएगा तो इसकी जो टेल है वो चमकने लगेगी। ठीक है, तो क्या है ये? कॉमेट्स जो हैं गैस के क्लाउड होते हैं,
गैस और आइस क्रिस्टल्स के ये बने होते हैं, जिनकी एक लंबी पूंछ होती है। नॉर्मली ये हिडन रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये सन के ऑर्बिट में आ जाते हैं तो ये हमें दिख जाते हैं। ऐसा एक फेमस कॉमेट है हैली। तो हैली जो कॉमेट है वो हमें 76 ईयर्स के अराउंड दिखता है। 76 साल में वो एक बार दिखता है। फाइंड आउट कब लास्ट दिखा था और कब दिखने वाला है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टर्म, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। होते होंगे तो आपको टूटता तारा दिखता है। वो जो टूटता तारा, वो मीटियोर होता क्या है, कोई भी रॉकी ऑब्जेक्ट, कोई भी रॉकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो गैस का क्लाउड अर्थ के चारों तरफ है, दैट इज वेरी थिक। और उस थिक क्लाउड में क्या होता है, वो जलने लगता है, इट स्टार्ट बर्निंग अप, राइट। एंड ड्यू टू दिस बर्निंग एक लाइट प्रोड्यूस होती है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट वी कॉल मीटियोर, राइट। एक स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट वी कॉल मीटियोर। ठीक है। अब इसके बाद में अगर वो मीटियोर जो है पूरी तरह से बर्न अप हो गया, वो जो रॉक का ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से बर्न हो गया बिफोर लैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड मीटियोर। सपोज उसका कोई पार्ट, 1-8 किलो का कोई पार्ट अगर अर्थ तक पहुंच गया, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मीटियोराइट। सो व्हाट इज मीटियोराइट? पार्ट है जो कि अर्थ पे टच हो गया, अगर कोई पत्थर आके अर्थ पे गिर गया, पूरी तरह से ना जल पाया, दैट इज मीटियोराइट। ठीक है। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स that I wanted to discuss with you today, and I believe you have learnt a lot. From tomorrow onwards we will take full length class. Okay, thank you, take care, bye bye.